Good morning to everyone. We have already started with the new chapter accounting for limited liability partnership, and we have discussed some of the concepts. Today we will discuss one of the important concept known as designated partner. Now, who is a designated partner? So, designated partner is similar to a director in the joint stock company. So, designated partner is nothing but it is similar to a director in the companies. So, what is the meaning of designated partner? Designated partner means any partner designated as such pursuant to section 7 of Limited Liability Partnership Act 2018. So, it is those who are designated, who are given charge according to section 7 of the Companies Limited Liability Partnership Act 2008. I'm sorry, 2008. And see, every limited company, now how many numbers? Every limited liability partnership, every limited liability partnership shall have at least 2 designated partners. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 2 designated. This may come in the objective that how like limited liability partnership में कितने designated, at least कितने designated partners होने चाहिए? The right answer is 2. Every limited liability partnership shall have at least 2 designated partners who are individuals and individual, and at least one of them shall be a resident or in India. So non-resident भी चलता है, लेकिन at least 2 में से at least 1 person should be the resident in India. So now, however, in case of a limited liability partnership in which all the partners are body corporate. See, company, अब अगर सब पार्टनर्स आर्टिफिशियल पर्सन है तो इन विच वन और more partners are individuals and bodies corporate, at least 2 individuals who are partners of such limited liability partnership or
नॉमिनीज, बिकॉज बॉडी कॉरपोरेट है तो वो लोग खुद नहीं बन सकते, तो उनको किसी को एक को नॉमिनी रखना पड़ेगा, और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडीज कॉरपोरेट इंडिविजुअल है तो वो खुद रहेगा, पर अगर कंपनी है तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ नॉमिनी शल एक्ट एज designated partners. Designated partners चाहिए, that is at least 2. Now let us go to the next one. Let us discuss LLP agreement. Now what is LLP agreement? Limited liability partnership agreement. So LLP agreement means, and written agreement means, it refers to a written agreement between, what is LLP agreement? It is a written agreement between the partners of the limited liability partnership, or between the limited liability partnership and its partners, which determines the mutual rights, and duties of the partners and their rights and duties in relation to that of the limited liability partnership. तो इसमें क्या पता चलता है, LLP में इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द LLP और बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर्स, आपस में जो इनका म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज है पार्टनर्स का, and towards the LLP and their rights and duties towards the LLP. And in absence of LLP agreement, in absence of LLP agreement, क्या करते हैं, अगर LLP agreement नहीं है तो the mutual rights of partners and it's in relation to LLP will be determined, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, will be determined as per schedule 1 of the LLP Act 2008. मतलब अगर कभी LLP एग्रीमेंट नहीं है, तो LLP एग्रीमेंट नहीं है तो कैसे राइट्स एंड ड्यूटीज का पता चलेगा, देन शेड्यूल 1 अडॉप्ट करना पड़ेगा. दे विल हैव टू, द पार्टनर्स हैव टू डिपेंड ऑन द शेड्यूल 1 of the LLP Act 2008 for their rights and duties. Now, after this, what we will do is, now we will discuss the format
we will discuss the format, and before that, before discussing the format, let us discuss one more concept, that is contribution. Now what is contribution here? Contribution यहाँ पे refers to the part or share. तो कंट्रीब्यूशन मीन्स जहाँ पे हम लोग वहाँ पे कैपिटल बोलते हैं, यहाँ पे कैपिटल को हम क्या रेफर करेंगे? कंट्रीब्यूशन. सो पार्ट और शेयर. सो कंट्रीब्यूशन मीन्स पार्ट और शेयर in reference to LLP. Contribution can be termed as what a partner is contributing towards the limited liability partnership for running of his business. So ये in short ये contribution is nothing but the capital. But यहाँ पे हम इसको capital नहीं, हम इसको जैसे अपना कंपनी में शेयर कैपिटल बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूशन बोलते हैं. समझ में आया द डिफरेंस? द कंपनी वी रेफर टू एज अ शेयर कैपिटल. इन द LLP business we call it as contribution. So with this, what we will do now, we will go to the format. We will go to the format of the balance sheet and income expenditure account. So asset statement of assets and liabilities and income and expenditure account. जो format है that I will explain to all of you. So let us, I will share that slide 1 minute. I'll share that screen. So this is the format of the balance sheet. Now 2 columns are there, current year and previous year. But question में सिर्फ current year का ही information होगा. Statement of assets and liabilities of whatever the LLP name is and the period. So now जैसे हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलते हैं, देखो हमारे कंपनीज बैलेंस शीट में यहाँ पे हम इक्विटी नहीं, कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटी बोलेंगे. व्हाट विल वी कॉल द लाइबिलिटी एज कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटीज. तो कंट्रीब्यूशन मीन्स द पार्टनर्स फंड. वहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड था, यहाँ पे इट इज पार्टनर्स फंड बिकॉज LLP में जो ओनर्स हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं. एंड LLP इज गवर्न्ड बाय LLP एक्ट 2008. तो एंड कंपनीज जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फंक्शन करते हैं. तो LLP के लिए कौन सा रूल है? LLP के लिए उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन द LLP एक्ट 2008. तो कंट्रीब्यूशन रेफर्स टू पार्टनर्स फंड. एंड इसमें हम 2 चीज बताएंगे. एक तो कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, जो कि हर एक पार्टनर से जो भी पैसा मिला रहेगा इज रेफर टू एज कंट्रीब्यूशन. एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो सरप्लस बीइंग द प्रॉफिट लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर. मतलब रिजर्व्स मतलब ऑल द सेविंग्स ऑफ द पार्टनरशिप. ओन पार्टनर्स, रिजर्व्स मतलब पार्टनर्स का सेविंग, सरप्लस मतलब प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर. सो यहाँ पे तुम लोग को समझा पार्टनर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड नहीं, पार्टनर्स फंड. और इसमें कंट्रीब्यूशन है and we have reserves and surplus. इसमें surplus being the profit or loss made during the year. Then we have liabilities. Liabilities में secured loan है, unsecured loan है, short term borrowings है, creditors या trade payables है,
एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अगर हमारे कस्टमर से हमें एडवांस में पैसा मिलता है तो वो हमारा लाइबिलिटी हो जाता है। अगर हम डेटर से एडवांस में पैसा लेंगे, हमारे कस्टमर से एडवांस लेंगे, तो इट विल बी इन द लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटीज दैट हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, outstanding expense या any other liability. Then we have provisions for taxation, for any uncertain expenses, for any contingencies, uncertain event, for insurance or other provisions if any. तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड हो गया। अभी हम लोग असेट साइड में आएंगे। असेट साइड में है ग्रॉस फिक्स एसेट, जिसमें टैंजिबल एसेट रहेगा, इंटैंजिबल एसेट रहेगा। सी दे हैव इन द ब्रैकेट रोट इंक्लूडिंग इंटैंजिबल एसेट्स। देन हमारे पास टैंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन होता है, और इंटैंजिबल एसेट में जो राइट ऑफ करते हैं उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। सो फ्रॉम ग्रॉस फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इंटैंजिबल एसेट्स वी विल लेस depreciation and amortization. So then we get net fixed asset। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, लोन्स एंड एडवांसेस है, इन्वेंट्रीज है, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल है। डेटर्स बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोल सकते हैं, पर बिल्स रिसीवेबल भी इंक्लूड होता है। एंड ट्रेड पेबल में भी बिल पेबल इंक्लूड होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर असेट्स, अदर असेट जो भी है हमें दिखाना पड़ेगा, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड। तो इसके साथ हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो जाएगा। इट इज वेरी सिमिलर टू द कंपनीज बैलेंस शीट विच, बट देयर मेनी क्लासिफिकेशंस आर देयर। यहाँ पे हम एक के नीचे एक लिखते जा रहे सी, बट लाइबिलिटी में दो है, कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि पार्टनर्स फंड को बोलते हैं, एंड बाकी सब लाइबिलिटीज एक के नीचे एक लिखा, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मतलब ये ऑर्डर वही है जो हम कंपनीज के बैलेंस शीट में लिखते हैं, सेम ऑर्डर, बट यहाँ पे हमें नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में क्लासिफाई नहीं करना है। एंड असेट्स में भी देखो, पहले हम ग्रॉस फिक्स एसेट लिखते हैं जिसमें इंटैंजिबल एसेट होता है, टैंजिबल एसेट होता है, फिर उसमें हम डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट का, अमोर्टाइजेशन इंटैंजिबल एसेट का माइनस करते हैं, वी गेट नेट फिक्स एसेट। देन इन्वेस्टमेंट आता है, लिखते हैं, फिर लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म, फिर इन्वेंट्रीज, डेटर, कैश एंड कैश equivalent, other assets. It is similar to the company's format. Then any disclosure है that has to be done. Then what we will, contingent liability comes in the note ना, जो हमने प्रोवाइड नहीं किया, जिसके लिए साइड में पैसा नहीं रखा। Then we come to the statement of income and expenditure। मतलब P&L अकाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलेंगे, P&L अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम वे करंट ईयर, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नेम ऑफ द LLP बिजनेस फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम टू, मतलब कौन से पीरियड के लिए वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद इनकम मतलब ग्रॉस टर्नओवर मींस ग्रॉस सेल्स, इसमें से एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जो भी है लेस किया, हमें मिला टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स लेस किया फ्रॉम ग्रॉस टर्नओवर, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस किया, हमें मिला नेट टर्नओवर, नेट सेल्स। फिर अगर इधर डोमेस्टिक सेल्स है तो लिखेंगे, एक्सपोर्ट सेल्स है तो वो लिखेंगे, फिर अदर इनकम है वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, वो लिखेंगे। तो डोमेस्टिक टर्नओवर जो भी हमने सेल्स मैन्युफैक्चर किया, ट्रेड किया, सप्लाई किया, एक्सपोर्ट सेल्स भी जो भी मैन्युफैक्चर किया, सेल ऑफ मतलब मैन्युफैक्चर गुड्स जो सेल किया, ट्रेडेड गुड्स जो सेल किया, और सेल और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब यहाँ पे डोमेस्टिक टर्नओवर मतलब क्या, जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है वो सेल किया तो वो भी इधर ही आएगा, या फिर किसी ने परचेस करके सेल किया है तो वो भी इधर ही आएगा। अगर सर्विसेज है तो वो भी इधर आएगा। एंड देन एनी अदर इनकम इज देयर, वो भी दिखाना पड़ेगा बिकॉज इट इज ग्रॉस, इट इज इनकम ना। फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक,
including for raw material, work in progress, and finished goods. Now, how do we get increase or decrease in stock? Opening stock minus closing stock. Increase or decrease in, ये हम लोग इनकम में नहीं लिखते थे ना पहले, बट यहाँ कंपनीज फॉर्मेट में हम चेंज इन इन्वेंट्रीज हम यहाँ पे नहीं लिखते थे, बट इधर वी हैव टू राइट इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक. फिर इसके बाद एक्सपेंसेस में आएंगे. एक्सपेंसेस में क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमारा सेम, इट इज सिमिलर to company's P&L account. This is income and expenditure, but it is similar to company's profit and loss account. तो हम लोग को वो मतलब ये ऑलमोस्ट रिपीटेशन है, वो याद किया तो ये याद करने पे प्रॉब्लम नहीं आएगा. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेसेस मेड फॉर रीसेल मतलब खरीदा फिर बेचा. रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करना है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल, पर्सोनल एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पेमेंट टू ऑडिटर्स, सेलिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट. इसके अलावा और भी कोई एक्सपेंस है तो उसको अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे टू बी स्पेसिफाइड. मीन्स कोई और एक्सपेंस है अदर देन द अबाउट, लॉस ऑफ गुड्स या कोई और एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस जो कि ऊपर का हेड में नहीं बैठता, फिट बैठता है, तो उसको हम अदर एक्सपेंस बोल के नीचे बताएंगे. सो वन सेकेंड, लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा या तो हम परचेस करेंगे दोबारा सेल करने के लिए, खरीद के बेचना. Then consumption of store and spare parts, power and fuel, personal मतलब हमारे एम्प्लॉइज का एक्सपेंस, सैलरी, इंसेंटिव्स, बोनस, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस एक्सपेंस, ऑडिटर को पे करना है, ध्यान में रखना है क्या क्या है इधर. एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट. सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस, फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, इतना याद करना. बाकी कोई भी एक्सपेंस है तो अदर एक्सपेंस. फिर हमें जब टोटल एक्सपेंस निकालेंगे तो इनकम से एक्सपेंस माइनस किया तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिफोर टैक्स मिलेगा. नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिफोर टैक्सेस. फिर इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस. मतलब हमें देख इसके जो भी प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स वो दो जो अगर दिया है जो भी है वो हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है टू पार्टनर्स अकाउंट. अगर कोई अप्रोप्रिएशन दिया कि ये रिजर्व्स में इतना ट्रांसफर करो तो उधर करेंगे. मीन्स देयर आर टू प्लेसेस वेयर दिस में बी ट्रांसफर्ड. पार्टनर्स के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं, यहाँ पे कैपिटल नहीं बोल सकते ना, यहाँ पे हम कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बोलते, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन अकाउंट बोलते, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल करके रेफर नहीं करना है, यहाँ पे कैपिटल को कंट्रीब्यूशन बोल के रेफर करना है. सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन अकाउंट या तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस व्हाट एवर इज टोल्ड. तो इसके हिसाब नथिंग टोल्ड तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट बोलेंगे. तो इसके साथ ये फॉर्मेट भी हो गया. हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट देखा और हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा. तो हम नेक्स्ट लेक्चर से इसके सम स्टार्ट करेंगे. टिल देन थैंक यू वेरी मच एवरीवन.